My lovely students, in this session we'll be taking up questions of Venn diagram and set theory that have appeared in that examination. So let us start the session. First question is, a computer program was tested 300 times before its release. The testing was done in 3 stages of 100 tests each. The software failed 15 times in stage 1, 12 times in stage 2, 8 times in stage 3, 6 times in both stage 1 and stage 2, 7 times in both stage 2 and stage 3, 4 times in both stage 1 and stage 3, and 4 times in all the 3 stages. So actually how many times the software failed in a single stage only? So basically हमारे लिए जो concern है that is not कि कितने टाइम इसको टेस्ट किया है 3 टाइम्स और टेस्टिंग कितने टाइम्स हर एक स्टेज में हुई है, बट स्पेसिफिकली कितनी बार फेल हुआ है, दैट इज ऑल अवर कंसर्न इज. सो लेट अस सेट बनाते हैं कि स्टेज 1 में फेल हुआ है, दैट विल बी आवर फर्स्ट सेट, स्टेज 1 फेल्योर. सेकेंड सेट विल बी स्टेज 2 फेल्योर and third set will be stage 3 failure. Stage 1, 2 and 3. Now the first and most important information is 4 times in all the 3 stages it has failed, so 4 should be inside. Now total 15 times in stage 1, total 12 times in stage 2, total 8 times in stage 3. Also 6 times in both stage 1 and 2. So this 6 belongs to these two values. ठीक है, always अगर mentioned होता कि 6 times in both stage 1 and 2 only, in that case सिर्फ ऊपर वाले portion से belong करता, but since both stage 1 and stage 2 है तो stage 3 is also a possibility, that is why पूरे portion से belong करेगा. And since we know कि 4 is the value for all the 3 stages, तो बचा कितना? 2 बचा, तो 2 will be here. Similarly 7 times in both stage 2 and stage 3, so 7 is belongs to this value, so this will be 3. 3 for only stage 2 and stage 3. 4 times total in stage 1 and stage 3, so this value will be 0 for stage 1 and stage 3 only. This will be 0. Okay, now all values can be filled up. 4 plus 2, 6. 15 minus 6 will be equal to 9 for stage 1 only. For stage 2 only, this will be 4 plus 2, 6 plus 3, 9. 12 minus 9, 3. And last but not least, for stage 3 only, this will be only 1. Now the question is, how many times the software failed in a single stage? The answer will be 9 plus 3 plus 1, that is 13. 13 will be our answer for this question. Clear? Okay. Next one. Read the information given below and answer the 2 associated questions. 190 students have to choose at least 1 elective and at most 2 electives from a list of 3 electives. So there are 3 electives and they have to choose at least 1 and at most 2. E1, E2 and E3 are 3 electives. It is found that the number of students choosing E1 is half the number of students choosing E2 and 1/3 the number of students choosing E3. So E1 का number is equal to E2 by 2 and E3 by 3. Moreover, the number of students choosing 2 electives is 50. Choosing 2 electives is 50 और total number है 190 और मिनिमम उनको एक इलेक्टिव चूज करना है, मैक्सिमम 2 चूज करना है. सो क्या केसेस होंगे यहाँ पे? कुछ लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ एक इलेक्टिव चूज किया होगा, दे विल बिलोंग टू दोज हु हैव चोजन ओनली 1 इलेक्टिव, तो सिर्फ एक सेट से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होंगे वो. और सम स्टूडेंट्स वुड हैव चोजन 2 इलेक्टिव्स, मैक्सिमम 2 ही कर सकते, 3 तो कर ही नहीं सकते. सो दोज विल बिलोंग टू एग्जैक्टली 2 सेट्स और दोनों का सम कितना है? समेशन इज 190. So elements belonging to one set plus elements belonging to 2 sets, the sum is 190. And we also know that number of students choosing 2 electives is 50. So if this is 50, so definitely number belonging to one set is 140. और जो 2 electives जिन्होंने choose किए हैं, those who belong to 2 sets, if we take total summation, then they will be counted twice. उनका double counting होगा because 2 sets में count होंगे. तो first plus 2 times second, this will be equal to 190 plus 50 which is 240. क्या इक्वेशन समझ में आता है? ठीक है कि जो लोग 2 एलिमेंट्स में बिलोंग करते हैं वो डबल काउंटिंग होगा उनका. तो टोटल वैल्यूज में टोटल वैल्यू क्यों हमें चाहिए? बिकॉज हमें वहीं का कनेक्शन दिया हुआ है कि E1 इज E2 by 2 इज इक्वल टू E3 by 3. तो हम E1 प्लस E2 प्लस E3 की बात कर रहे हैं, दैट विल बी 240 ओनली. दिस वैल्यू इज E1 प्लस E2 प्लस E3. क्लियर? 190 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बट इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने E1 भी लिया होगा, E2 भी लिया होगा, कई ऐसे हैं जिन्होंने E2 भी लिया होगा, E3 भी लिया होगा एंड सो ऑन. So that is why we have taken this value. Okay, so now we can put
E1 इज E2/2 एंड E3/3. तो E1 को इक्वल टू अगर 1 एज्यूम कर ले हम, इफ E1 इज इक्वल टू 1, देन E2 विल बी इक्वल टू व्हाट? E2/2 इज इक्वल टू 1, यानी E2 इज इक्वल टू 2. E3/3 इज इक्वल टू 1, सो E3 विल बी इक्वल टू 3. तो 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट यानी कि 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 240. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 40. 1 यूनिट इज इक्वल टू 40. ये बात तो समझ में आ गई अपन को, यानी कि E1 इज इक्वल टू 40, E2 is equal to 8080 and E3 is equal to 120. These are the given information. ठीक है. Which of the following cannot be obtained from the given information? That is the question. Number of students choosing E1, definitely we obtained that. Number of students choosing E3, that also we have obtained. Now थोड़ा सा वेन डायग्राम बना लें, सो चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाए probably. So we know दो वैल्यूज कुछ फिलअप नहीं कर पाएंगे वहाँ पे. Okay, so number of students choosing both E1 and E2, no we have not figured out that out, वो अभी नहीं पता चला. So हाँ, number of students choosing exactly one elective, exactly one तो पता लगा लिया हमने. This value exactly one is 140, यानी कि the number is 140, so that we have identified. Choosing E1 is 40, choosing E3 is 120. Both E1 and E2 we have not identified it yet, and with the given information we cannot identify it. ठीक है. Number of students choosing either E1 or E2 or both but not E3. Those students who have not chosen E3 as an elective. So यानी कि basically हमें ये portion नहीं चाहिए. This portion is not wanted, not desired. So total में से बस इसको subtract कर दो. Total में से 120 subtract कर देंगे, यानी कि 190 minus 120, this value will be 7070. So yes, this value is also identified. Answer will be option D. Answer will be option D. Next question. दो क्वेश्चन एसोसिएटेड है इस इंफॉर्मेशन से. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका. सेकंड इज इन एडिशन, ऊपर की कहानी तो बिल्कुल सेम है. इन एडिशन टू द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कंप्यूट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ओनली E1, ओनली E2 एंड ओनली E3. आपको कंप्यूट करना है ओनली E1, ओनली E2, ओनली E3. और नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब क्या? वो मिनिमम जितनी इंफॉर्मेशन से हमारा काम चल जाए. वी डू नॉट हैव टू चूज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. Our answer will be that minimum information which will give us our answer. Is it clear? So minimum यानी कि अगर एक ही इंफॉर्मेशन से काम चल रहा है that is best. एक से नहीं चल रहा है तो दो से चल रहा है तो अच्छी बात है. तीन से चल रहा है तो ठीक बात है. बट अगर तीन से चल रहा है और दो से चल रहा है तो जो दो से चल रहा है that will be our answer because that is necessary and sufficient. We do not need three information when we can do our job by just getting two informations. Okay, ठीक है. So अब फटाफट से वेन डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इसको information को. तो E1, E2, E3 and we know numbers are 40, 80 and 120 that we already identified. What else have we identified? That elements belonging to one set is 140, elements belonging to exactly two sets is 50 था, 50 and this value in the middle is 0. This is 0. Okay, so हमें identify करना है only E1, only E2 and only E3. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग बोथ E1 एंड E2. अगर हमें बोथ E1 एंड E2 पता चल जाए, यानी कि इफ वी आइडेंटिफाई दिस वैल्यू, सो कैन वी सॉल्व दिस? नो, वी कैन नॉट सॉल्व दिस बिकॉज इवन इफ वी आइडेंटिफाई दिस वैल्यू, ठीक है ये वैल्यू पता चल जाएगी, बट व्हाट अबाउट दिस वैल्यू और दिस वैल्यू? वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट. देयर इज नो अदर इक्वेशन टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल. सो ऑप्शन ए इज नॉट सफिशिएंट. ऑप्शन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ओनली E1 यानी कि वी गेट टू नो दिस वैल्यू. And number of students choosing both E2 and E3, which implies कि this value basically. So since this is 0, तो ये value पता चल जाएगा. This will be known and this will be known. But the problem is we cannot connect these two values because one value belongs to E1 set and other value belongs to E2 set. Separate sets को belong करने वाली information है, so we cannot solve from those values because there is nothing else that is known. So option B is also not sufficient. बिकॉज उससे हम कुछ भी इक्वेशन नहीं बना पाएंगे और कनेक्ट नहीं कर पाएंगे वैल्यूज़ को. ऑप्शन 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ओनली E2 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग बोथ E2 एंड E3. नाउ दिस इज समथिंग बिकॉज इन दिस केस वी आर एक्चुअली गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ द सेम सेट. E2 वाले सेट की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं. एक वैल्यू इज ओनली E2 एंड द अदर वैल्यू इज बोथ E2 एंड E3. सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ द सेम सेट. सो वंस वी गेट टू वैल्यूज ऑफ द सेम सेट, total value तो 3 ही है because one value is 0 already. So once we get these two values, we can surely get this value as well.
third value as well, isn't it? So for example, if this is A and this is B, so E2 का टोटल सेट में एलिमेंट्स है 80, तो 80 ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 80 माइनस ए प्लस बी, बिकॉज ये वैल्यू तो जीरो ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वैल्यू मिल जाएगी हमको, और एक बार हमको वी आइडेंटिफाइड दिस वैल्यू, तो फिर इसके आगे की कहानी हो सकती है। हाँ, इसके बाद में क्या बचेगा हमारा, 80 माइनस ए प्लस बी आ गया, तो वी गेट दिस वैल्यू। एक सेट हमारा कंप्लीट हो गया, एक सेट तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी सेट के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, नाउ वी नो ए और बी की वैल्यूज तो हमें पता चल गई, ठीक है। सो फॉर दिस सेट इवन में वी नो व्हाट कि x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 40 माइनस दिस, और सिमिलरली y प्लस z will be equal to 120 minus b. Now we know b, we know this value, so we know these equations. But इसके अलावा और क्या है हमको पता, और क्या पता है, हाँ, definitely we know students belonging to exactly two sets, we know that. So this value plus b plus y is equal to 50, and we know this, we know b, so definitely we will get y from here. y पता चल जाएगा, y पता चल जाएगा, तो y को यहाँ पुट कर देंगे, x पता चल जाएगा, एंड डेफिनेटली फिर z भी पता चल जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमें पता चल जाने वाली है, isn't it so? क्लियर है? सो यस, दिस information, there are two sets of information, two values for same set, so yes, we can get the answer from this. No extra information is necessary, no, that is definitely not the answer, we needed extra information. और ऑप्शन ई पे इसलिए चेक नहीं करना बिकॉज वहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इवन इफ उससे हमें आंसर पता चलता है, तो सी इज मच बेटर देन दैट, सी इज मच बेटर, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। वैसे ई क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग बोथ E1 एंड E2, बोथ E2 एंड E3, बोथ E3 एंड E1, सो यस, उससे भी हमारा आंसर मिल जाएगा, हमको डेफिनेटली मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे हम 3 इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, व्हेन 2 इन्फॉर्मेशन आर सफिशिएंट वी विल नॉट टिक एन आंसर विच इज गिविंग अस मोर इन्फॉर्मेशन, क्लियर। सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इवन इफ ई पहले आता तब भी हमको चेक करना था कि जहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें वहाँ से आंसर मिल रहा है तो दैट विल बी अवर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इन द फाइनल सेमेस्टर एन इंजीनियरिंग कॉलेज offers 3 elective courses and 1 mandatory course. 3 elective courses and 1 mandatory course. ठीक है, 3 electives and 1 mandatory. A student has to register for exactly 3 courses. Exactly 3. 2 are electives and 1 is a mandatory course. So for everyone, there is 1 mandatory course that he must take plus 2 electives he will be taking. The registration in 3 of the 4 courses is 45, 55 and 70, which implies that for one course the registration information is missing. We do not know that which course that is. What will be the number of students in the elective with the lowest registration? So we need to identify that elective which has the lowest registration. Okay, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट केस कुड बी दैट एक इलेक्टिव की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, रजिस्ट्रेशन ऑफ 1 इलेक्टिव इज मिसिंग। सेकंड केस कुड बी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैंडेटरी कोर्स इज मिसिंग। दैट इज अ पॉसिबल केस। तो अगर मैंडेटरी कोर्स है, मैंडेटरी कोर्स तो कंपलसरी सबको लेना है वो, तो उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम होगी। मैंडेटरी कोर्स क्योंकि कंपलसरी है तो उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम होगी, इजंट इट सो? दैट वैल्यू विल बी मैक्सिमम। सो अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो 2 केसेस बने। पहला केस बना कि डेटा ऑफ मैंडेटरी कोर्स इज मिसिंग, एंड इफ दैट इज मिसिंग तो वी नो कि इलेक्टिव्स का डेटा तो हमारे पास है, E1, E2, E3 तीनों का डेटा 45, 55, 70, एंड मैंडेटरी कोर्स का डेटा मिसिंग है। तो क्या वो डेटा निकाल सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन आइडेंटिफाई दैट डेटा। कैसे निकाल सकते हैं? बिकॉज वी नो कि एवरीवन हैज टेकन 2 इलेक्टिव्स, एवरीवन हैज टेकन 2 इलेक्टिव्स, सो इन एवरी केस डबल काउंटिंग हुआ होगा, ठीक है। कुछ ने E1 और E2 लिया होगा, कुछ ने E2 और E3 लिया होगा, कुछ ने E3 और E1 लिया होगा। सब केसेस में डबल काउंटिंग हुआ होगा, यानी कि एवरी स्टूडेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 सेट्स, either E1 and E2 or E2 and E3 or E3 and E1. So for example, if this is E1, this is E2, this is E3, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज होंगी जो यहाँ पे होंगी, let us say A, let us say B is here, let us say C is here, this is 0, this is 0, this is 0, this is 0. So all values will belong to exactly 2 sets, यानी कि सबका डबल काउंटिंग होगा। तो मैंडेटरी कोर्सेज में कितने होंगे टोटल? A plus B plus C, this will be the value, isn't it so? But problem is कि E1 क्या है? E1 is A plus B, E2 is
ए प्लस सी एंड E3 इज बी प्लस सी। जब तीनों को सम अप करोगे, तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, सो दैट विल बी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। और एक्चुअल नंबर ऑफ एनरोलमेंट कितना है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वैल्यू हमारा मैंडेटरी कोर्स से बिलोंग करेगा, यानी कि मैंडेटरी कोर्स में कितना वैल्यू आएगा, दैट विल बी 45 प्लस 55 प्लस 70 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी 170 बाई 2 यानी 85 विल बी टोटल एनरोलमेंट फॉर द मैंडेटरी कोर्स। दो हमें वो पता नहीं करना था, बट ये समझना जरूरी है, ठीक है। हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इलेक्टिव विद द लोएस्ट रजिस्ट्रेशन। तो अगर पहला वाला केस है हमारा, इन दैट केस 45 is the number of is the elective with the lowest registration, 45 is that number, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस इज कि वन इलेक्टिव इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, वन इलेक्टिव इंफॉर्मेशन इज मिसिंग एंड इफ दैट इज मिसिंग तो वी नो कि जो हाईएस्ट नंबर है हमारा दैट इज रजिस्ट्रेशंस इन द मैंडेटरी कोर्स ऑब्वियसली। सो इन दैट केस हमें नहीं पता कि E1 E2 E3 कौन सा है, बट ये तो पक्का पता है कि वन ऑफ देम इज 45, वन ऑफ देम इज 55 and mandatory course का data is 70 and if that is 70, so we know कि 70 into 2 by the same logic 70 into 2 140 should be the sum of these three values। तो अगर E1 में वैल्यू E है तो E plus 45 plus 55 that will be equal to 140 and from that logic 140 minus 140 should be the value for E and 40 is the minimum value, लेस देन 45 लेस देन 55। तो डेफिनेटली इस केस में हमारा 40 वैल्यू आ रहा है, तो या तो 40 आएगा या 45 आएगा, दो केसेस पॉसिबल हैं, बी भी आ सकता है डी भी आ सकता है। सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, ईदर बी और डी। इज इट क्लियर? अच्छा सवाल था, लॉजिक समझ में आता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ क्लास ऑफ 60 along with English as a common subject, students can opt to major in mathematics, physics, biology or a combination of any two। A combination of any two which implies कि all three cannot be taken। मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। 6 स्टूडेंट्स मेजर इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इन्फॉर्मेशन आर गिवन, पहले अपने सेट बना लेते हैं तीनों, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, टोटल 60 है क्लास में, टोटल नंबर इज 60। ओके, 6 students major in both mathematics and physics, so this is 6। 15 major in both physics and biology। Always remember कि अगर both लिखा है, अगर only भी साथ में लिखा है तब तो डायरेक्टली फिल कर दोगे, अदरवाइज इस तरह से ही वैल्यूज को बार बार लिखोगे। ये याद रखना है दिमाग में, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। एग्जाम में पक्का उसके लिए ऑप्शन देता है और एग्जामिनर बार बार ये चेक करता है, बिकॉज सेट थ्योरी में बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हो, कॉमन मिस्टेक्स है। बट नो वन मेजर्स इन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, सो दिस नंबर इज 0। इफ दिस इज 0 तो डेफिनेटली दिस इज 0, दिस इज 0, क्योंकि नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता। एंड इफ दैट इज सो दिस विल बी 6, दिस विल बी 15। और ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट में भी लिखा था कि मैथमेटिक्स इज बायोलॉजी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू, तो ऑल थ्री हैज टू बी 0। ओके, सो एनीवे इन एन इंग्लिश टेस्ट द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट्स मेजरिंग इन मैथमेटिक्स इज 45। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई स्टूडेंट्स मेजरिंग इन मैथमेटिक्स इज 45 एंड देयर आर स्टूडेंट्स मेजरिंग इन बायोलॉजी इज 60। अब इन्फॉर्मेशन अभी तक तो कुछ भी दी नहीं और एडिशनल। हाउएवर द कंबाइंड एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दीज टू मेजर्स इज 50। कंबाइंड एवरेज है 50 का। और ओनली इन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स मेजरिंग इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट मेजरिंग इन मैथमेटिक्स, यानी कि जिसमें कि दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एंड दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो स्टूडेंट्स मेजरिंग मैथमेटिक्स का जो एवरेज है दैट इज 45। सो मैथ वालों का एवरेज इज इन इंग्लिश इज 45 एंड बायोलॉजी वालों का एवरेज इन इंग्लिश इज 60। और ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा है 50, दोनों का मिला के। ओवरऑल यानी कि टोटल का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड एवरेज इन इंग्लिश है ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दीज टू मेजर्स, यानी कि जो सिर्फ फिजिक्स वाले हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट दिस इन्फॉर्मेशन इज, ठीक है। तो क्योंकि अगर उनके बारे में बात किया होता तो फिर हम आंसर इस क्वेश्चन में पता नहीं लगा पाते, या फिर पता लगाते तो मे बी आगे कुछ टाइम और लगता हमारा, ये मेथड नहीं होता। एनीवे, तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का एवरेज जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है दैट इज अगेन ओवरऑल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरऑल एवरेज नहीं है ये। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज है दैट इज 50, दैट इज 50। तो यहाँ से एलिगेशन लगा के वी विल गेट द वैल्यू 60 माइनस 50 इज 10, 50 माइनस 45 इज 5, 10:5 का रेशियो है, यानी कि 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले सेट का। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। सो मैथमेटिक्स वाले सेट में लेटर से इफ दिस इज ए, या एम ही मान लेते हैं सबसे सिंप्लीफिकेशन के लिए।
कि if this is m, this is b, this is p, तो we know कि m plus 6 divided by b plus 15, the ratio is 2/1, 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So m plus 6 will be equal to 2b plus 30, 30. So m will be equal to 2b plus 24, 2b plus 24, m will be equal to 2b plus 24. ठीक है. Now we need to find maximum possible number of students who major only in physics. यानी कि we need to maximize the value of p. We need to maximize the value of p, and if we need to maximize value of p, then we should minimize everything else. सब कुछ जो बचा हुआ है उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, फिर मिनिमाइज करना पड़ेगा. ऑल्सो क्या हमें सम पता है तीनों का, m प्लस p प्लस b का. What will be this value? This value will be 60 minus 6 plus 15, यानी कि 60 minus 21. So this value will be, sum will be 39. Sum will be 39. Now if we need to minimize all the other values, तो अगर हम b को 0 कर दें, because 0 तो कर सकते हैं ना, b 0 is possible, तो b को 0 कर दिया, यानी कि only biology वाला students are equal to 0. So if b is equal to 0, so m will be equal to 24. m will be 24. और m plus p plus b 39 है, तो अगर m 24 हो गया, b 0 हो गया, तो यहाँ से we will get the value of p, the maximum value of p, which will be equal to 15. 39 minus 24 and hence 15. So answer will be 15, option D. क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली फिजिक्स. हाँ, तो ओनली फिजिक्स का आंसर विल बी 15. क्लियर? अच्छा सवाल था. इज द लॉजिक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन अम्यूजमेंट पार्क along with the entry pass, a visitor gets 2 of the 3 available rides A, B and C free. तो एंट्री पास के साथ में visitor gets exactly 2 of the 3 available rides, यानी कि तीनों नहीं मिल रही हैं, 2 मिल रही हैं. On a particular day, 77 opted for ride A, 55 opted for ride B and 50 opted for ride C. तो A, B और C को डायग्राम बना लेते हैं. अगेन राइड A 77 opted for it, ride B 55 opted for it, and ride C 50 opted for it. 25 visitors opted for both A and C, so total is 25 for this. 22 for A and B, both A and B 22, while no visitor opted for both B and C, so both B and C is 0. This implies obviously कि बीच वाला वैल्यू तो 0 ही होना है, क्योंकि 3 राइड्स के लिए कोई भी ऑप्ट नहीं कर पाएगा. और this is also 0, this is also 0, so this will be 22, this will be 25, and if this is 22, this is 25, total हो गया कितना 47, so this will be 30. 22, this will be 33, and 25, this will be also 25. Okay. Now the question is, 40 visitors did not opt for ride A or B or both. 40 visitors did not opt for ride A or ride B or both. तो ये 40 visitors कौन से हैं? These will not belong to A union B. A union B के बाहर होंगे. These 40. Isn't it so? क्योंकि उन्होंने ना तो A के लिए opt किया, ना B के लिए, ना ही both के लिए. So they probably belong to C only or neither. C only or neither, यानी कि neither में भी कुछ वैल्यूज हैं. That is what this line is hinting at. So पूरा प्रॉपर अपने सेट बनाया, कुछ वैल्यूज बाहर भी होंगी. तो अगर C only और neither में हमारा सम कितना आ रहा है, 40 का आ रहा है, and C only is 25, तो definitely neither is 15, neither is 15, so that is 15, that is outside all the 3 sets. Clear? Now the question is, how many visited with the entry pass on that day? Now the sum is easy. टोटल सम कितना आ रहा है, सब वैल्यूज को ऐड कर लो, सारी वैल्यूज को ऐड कर लो. सो वी नो कि 8 के सेट के अंदर तो 77 सम है. 77 plus 33 plus 25 plus 15, so this is 110 plus 40, so 150 is the answer. Total 150 visitors visited on that day, visited with the entry pass on that day. Is it clear? ठीक है, आंसर आ जाएगा 150. नेक्स्ट क्वेश्चन, %70% of the students who joined XCRI last year play football. 70% of students play football, 75% play cricket, 80% play basketball, and 85% play carom. The minimum percentage of students who play all the 4 games is what? Minimum चाहिए किसका? जो who play all the 4 games. तो number of students belonging to only 1 set plus only 2 set, because there are 4 sets. एक है सेट फुटबॉल का, क्रिकेट का, बास्केटबॉल एंड कैरम. देयर आर 4 सेट्स. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग ओनली 1 सेट प्लस 2 सेट प्लस 3 सेट प्लस 4 सेट, टोटल क्या होगा? दैट विल बी 100% ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, बट वी नो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बिलोंग टू 2 सेट्स दे विल बी काउंटेड ट्वाइस. दोज बिलोंग टू 3 सेट्स विल बी काउंटेड थ्राइस, एंड दोज बिलोंगिंग टू 4 सेट्स विल बी काउंटेड 4 टाइम्स. और ये सम क्या आएगा? दिस विल बी वैल्यू ऑफ 70
प्लस 75, दिस वैल्यू विल बी 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85, और ये कितना आ रहा है 145 155, यानी कि 310 165 310, क्लियर है। सो दिस सम इज इक्वल टू 310। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमें रिलेशन मिलेगा, रिलेशन मिलेगा सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एक्जैक्टली 2 सेट्स प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 सेट्स प्लस 3 टाइम्स the number of students belonging to 4 sets, then that will be equal to 210. Now we need to minimize this value. Number of students belonging to exactly 4 sets, we need to minimize this value. यानी कि हमें इससे पहले वाली वैल्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। सम तो 210 है, दैट इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू सम तो कांस्टेंट है, वी नीड टू मैक्सिमाइज एज मच एज पॉसिबल दिस वैल्यू, ठीक है। बट अगर हम इसको 100 दे दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 पुट कर दें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 सेट्स को अगर हम 100 कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या है वहां पे कि अब 100 यहीं पे आ गया सारा का सारा, जबकि टोटली सम 100 आना था, तो 0 बचे। अब ये 210 कैसे लाओगे, नॉट पॉसिबल, तो 100 तो नहीं हो सकता ये। कैन दिस बी 90, अगर हम इसको 90 कर दें तो 90 यहाँ पे आएगा, 90 इंटू 180 बचा है 30, तो यस 10 विल बी पुट हियर, 90 प्लस 10 इज 100, so दिस इज satisfying, तो मिनिमम वैल्यू हियर विल बी 10%, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। मिनिमम वैल्यू, minimum number percentage of students who play all the 4 games is equal to what, is equal to 10, but this is percentage, this is not the absolute value, is it clear? absolute value given भी नहीं क्वेश्चन में, तो उसके लिए बॉदर भी नहीं करना, बट अगर दी होती तो फिर उस केस में परसेंटेज से हम वो वैल्यू आइडेंटिफाई करते, गलती से टिक नहीं कर देना था 10 को, अगर परसेंटेज नहीं पूछा होता तो, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। अब नाउ देयर इज अ सेकंड अप्रोच जो इससे ज़्यादा ईजी है, कम समय में हो जाएगा। उसमें हमें क्या करना है कि हमें पता है यहाँ पे टोटल 4 सेट्स हैं, टोटल 4 सेट्स है, ओवरलैप मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इस वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 4 गेम्स, व्हाट वी कैन डू, टोटल हमारा कितना आ रहा है 310, सारी वैल्यूज को ऐड करके, तो 310 में से वील सब्ट्रैक्ट 3 into 100 बिकॉज टोटल 4 सेट्स हैं, दैट इज वाई वील सब्ट्रैक्ट 1 लेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आंसर विल बी 10% ओनली, ठीक है। दिस इज शॉर्टकट फॉर कमिंग टू दिस वैल्यू, क्लियर है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच इट, बट इन जनरल जैसे मिनिमम पूछा था मैक्सिमम पूछता तो कहानियां हो जाती, तो फिर हमें ये इक्वेशन अल्टीमेटली मैटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू सेट थ्योरम एंड डायग्राम। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्यों वेट कर रहे हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर सेशन, बाय बाय।